माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी। Now papers to be laid on the table of the House, श्रीमती सुषमा स्वराज। माननीय उपसभापति जी, आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात मैं सदन के पटल पर रखती हूँ। श्री अरुण जेटली। Sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 2 against my name in today's list of revised business. श्री कलराज मिश्रा। आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 में मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखे जाने का अनुरोध करता हूं। श्रीमती मनरेगा संजय गांधी। Sir, with your permission, I beg to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. श्री वाई एस चौधरी। Respected sir, with your permission, I beg to lay on the table the papers mentioned at serial number 5 against the name of my colleague Dr. Harshavardhan in today's revised list of business. Thank you. श्री प्रकाश जावड़ेकर। With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Chairman sir, with your permission, I beg to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you, sir. श्रीमती निर्मला सीतारामन। Sir, I wish to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 8 in the list of business of Rajya Sabha today. डॉक्टर महेश शर्मा। I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 9 in today's revised list of business. श्री जी एम सुदेश्वरा। Sir, with your permission, I beg to lay the paper on the table of the House listed against my name at serial number 10 in today's revised list of business. थैंक यू। श्री कृष्ण पाल। सभापति महोदय, मैं आज की कार्य विभाजन की सूची में क्रम संख्या 11 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री वाई एस चौधरी। With your permission, I beg to lay on the table the papers mentioned against my name at serial number 12 of today's revised list of business. Thank you. श्री मुख्तार अब्बास नकवी। Sorry. Sir, with your permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 13 in today's revised list of business. Thank you. श्री विजय संपला। महोदय, आज की कार्यसूची में मत संख्या नंबर 14 पर मेरे नाम के समक्ष रखे पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं। Report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, Sri P. Bhattacharya. Sir, I beg to present the 184th report in English and Hindi of the Standing Committee of Home Affairs on the action taken by the government on the recommendation observation contained in its 179 report, ATR on 137 report on the rehabilitation of J&K migrants. Report of the Committee on Public Undertakings, Sri Naresh Agarwal. से मैं CNG के वर्ष 2009-10 के प्रतिवेदन संख्या 9 के लेखा परीक्षक पैरा संख्या 13.5.1 पर आधारित जो रिपोर्ट है मैं सदन पर पटल पर रखता हूं। थैंक यू। जिनका 3 दिन पहले डेथ हुआ है, उसके बारे में बहुत सीरियसली इंक्वायरी करने का बात है और उनकी माँ बाप ने विधानसभा के सामने धरना दिए हैं और वो चाहते हैं कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी चाहते हैं, अपना इज्जत बचे, परिवार का इज्जत बचे करना। No, that's for the state government. 3 बड़े आप No, please. Okay, take your seat. Yeah. माननीय उपसभापति I am taking 267. Yeah. Now, please. Yeah. Now, please. No. I will allow. Please. Sit down. Now you sit down. आप लोग बैठिए. I will call you. आप लोग बैठिए. I will call you. Take your seat. Please, all of you resume your seat.
requested to, I will call you. I will give you. My dear, yeah. All of you are requested to take your seat. Now, see, notice under 267 has been received from Sri K.C. Tyagi, Sri Naresh Agarwal, Sri Ghulam Nabi Azad, leader of opposition, Sri Hussain Dalwai, Rajni Patel, Sri Bir Singh and Sri P. Rajiv. And in the morning it was decided we will have a discussion and minister will react and will be closed by 12. Before 12 we will close. So I am allowing first I am allowing those who have given notice maximum 3 minutes each. Sri K.C. Tyagi, losses of crop due to unprecedented heavy rains and hailstorm. K.C. Tyagi, maximum 3 minutes, not more than that. I will call others. I will call. No, but he has given notice. Why? Oh, no? Notice A. 267. 267. 267. No. No. I read the notice. Veer Singh is there. मान्य उपसभापति जी, मान्य उपसभापति जी, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मिश्रा जी, जरा बेटी, I will call you. Now please. Now Tarun, please. Tarun, please sit down. No, Tarun. No, see, Tarun, sit down. Tarun, I am not permitted. I am not allowed, Tarun. I am not allowed, Patel. Sit down. That will not go on record. No. See, Mr. Raji, 1 second. Now, Tarun, please. Mr. Raji, please. 1 second. Tyagi ji, Mr. Raji, you know the rule. See, I have 4 notice. I read the notice, the names of the notice. Veer Singh is also there. But Tyagi ji's notice is first. That is and Tyagi ji's notice first, so I called him. That's all. But I assure you, I will call Begin ji also. No problem. I will call. All of us yes, leaders. Restricted to 3 minutes. Leaders will be called. Restricted to 3 minutes. But restricted to 3 minutes. That is it. Sri K.C. Tyagi. Sir. Less than 3 minutes. 3 minutes से ज़्यादा नहीं. प्रयास करेंगे लेकिन सवाल ऐसा है. बोलिए. कि इस पर विस्तार से मैं कहना चाहता हूँ. नहीं, 3 minutes. मैं एक समाचार पत्र की हेडिंग पढ़ रहा हूँ. जब हम चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो जिनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं वोट के लिए, उस किसान की पीड़ा है, मंत्री जी बर्बाद हो गए, मुआवजा दिला दो. वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है. और जो अफसर है वो कह रहा है कि 10% से लेकर 15% तक का नुकसान हुआ है. सर कह रहे हैं 100% का नुकसान होगा तब मुआवजा मिलेगा. सर इसी तरह से जो सरकार ने नीति बनाई बीमा की, मैं सर बीमा का पटाखे सुनाना चाहता हूं. एक राज्य का विश्लेषण है, 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फसल बर्बाद हुई है. वित्त मंत्री महोदय, बीमा कंपनियों से 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मिलने की संभावना नहीं है. कृषि विभाग के अधिकारियों पर भरोसा करें तो बीमा कंपनियां पिछले 6 साल में करीब 18 करोड़ रुपए कमा चुकी हैं. यानी बीमा कंपनियां प्रदेश के किसानों से हर साल औसतन 350 करोड़ रुपए कमा रही है और वे किसानों के लिए सिर्फ 50 करोड़ औसतन दे रही हैं. यह है मुल्क की हकीकत. सर किसानों की खाद, बीज और मुझको चौधरी देवीलाल जी का अगर मैं जिक्र नहीं करूंगा जाती होगी. सर 1987 में आप भी हमारे साथ थे. हरियाणा में सरकार बनी थी चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में. सोनीपत में ओलावृष्टि हुई थी. देवीलाल जी सुबह 6 बजे गांव-गांव में जाकर के चारपाई पर बैठ करके पूछते थे कितना नुकसान हुआ. सर हमारी किस्मत इतनी खराब है कि सरकार भी खिलाफ और भगवान भी खिलाफ. किसके पास फरियाद करने के लिए जाए? आज तक केंद्र सरकार का एक मंत्री, किसी सूबे का मुख्यमंत्री किसानों के पास जाकर के ये नहीं पूछ पाया कि तुम्हारा नुकसान क्या हुआ है. ओके नाउ गए अच्छे ओके ठीक है. इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज. मैं प्लीज इंटरप्ट
आप बाद में बोल लीजिएगा। Now please. आप बाद में बोलिएगा। Now please. अच्छा है, मैं मुबारक Mr. Jha, please don't trouble. आप कीजिए चमचागिरी उनकी। Mr. Jha. सर, Mr. Jha, don't trouble. जितनी भी We फसल have है, to finish this before 12, so don't create problem. अरे बाद में कर Yeah. लीजिएगा, आप उनकी जितनी करनी है। पोलसन का मक्खन हम भी भिजवा देंगे आपके पास। अरे सुनो। सर, 10 दिन पहले हुई थी यहीं पर चर्चा। मैं माननीय शरद पवार जी से चर्चा कर रहा था, जो सदन में सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है। इन्होंने मुझको बताया कि जो यूपीए की सरकार थी, एक बार उन्होंने प्रणब मुखर्जी साहब को, एक बार श्री शरद पवार साहब को ऐसे ही मंत्रिमंडलीय योजना ग्रुप का चेयरमैन बना करके पूरे देश के किसानों की जो फसल की बर्बादी हुई है उसके लिए बनाई थी कमेटी। अब तो कमेटियां भी सब डिसॉल्व हो गई हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से चाहूंगा, मुझे उनकी ईमानदारी पर पूरा शक है, और इनके नेतृत्व में कोई कमेटी बन जाए असेसमेंट के लिए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास जाए। और सर जितनी बर्बादी इस बार हुई है, मैं फोटो लिए हुए हूँ। वित्त मंत्री महोदय, आपका मंत्री महोदय कह रहा है कि जो लेटी हुई फसल है वो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। कभी खेती की है? जौ में गेहूं का फर्क पता है? गमलों में कृषि करने वाले लोग गांव के लोगों के प्रति असंवेदनशील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बरसात के अंदर, ओले के अंदर जो फसल गिर जाती है, ना उनकी किस्मत उठती है ना फसल उठती है। जब आपको यही जानकारी नहीं है तो आप किसानों का भला क्या करेंगे? 100% लॉस किसान का। मैं कागज आपको मुहैया कराता हूं। सरकार सर, मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्रिमंडलीय समूह का एक चेयरमैन बने, वित्त मंत्री जी बने तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी, हमें उन पे विश्वास है। और समूह और ये लेकर भी सर यहाँ का नहीं हो गया। Now please conclude. ये सर एप्रिल के किसानों से लेकर के पवार साहब के इलाके के ग्रेप का, संतरे का, नागपुर में संतरे का, और कुमारी मायावती फसल बर्बाद। प्लीज आलू सड़ गया, प्याज सड़ गया। सर एक हाई पावर कमेटी बने, असेसमेंट करे, सारी कर्जा वसूली बंद हो, इनकी बेटियों की शादियों कुमारी मायावती जी, कुमारी मायावती जी। यस। माननीय उपसभापति जी, मौजूदा चल रहा संसद का सत्र 1-2 दिन में उठने के बाद अब अप्रैल महीने के आखिर में फिर से बैठेगा। और इस समय अपने देश का किसान अपनी 2 प्रमुख समस्याओं से बहुत ज़्यादा दुखी है, व चिंतित भी है। इस समय जो किसानों की जो 2 समस्याएं हैं, उसमें पहली समस्या ये है कि वर्तमान केंद्र की सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण विधेयक में जो संशोधन लाया गया है, तो उसको लेकर पूरा देश का किसान काफ़ी दुखी है, गुस्से में है और आंदोलित भी है। और क्योंकि ये जो संशोधन विधेयक है तो ये किसानों के हित में नहीं है, और किसानों के हित को ध्यान में रखकर हमारी पार्टी तो इस विधेयक के, संशोधन विधेयक के खिलाफ है। हमारी पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष भी तो इस संशोधन विधेयक के खिलाफ है। तो हमारी पार्टी ये चाहती है कि ये सत्र उठने से पहले ही तो ये जो भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक है, जो लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इसको हाउस में लाने से पहले इसको वापस ले लिया जाए और सन 2013 का जो भूमि अधिग्रहण विधेयक है उसको ही स्वीकार कर लिया जाए। माननीय उपसभापति जी, इस समय किसानों की दूसरी जो प्रमुख समस्या ये है कि पूरे देश के अंदर अधिकांश राज्यों में बेमौसमी बरसात की कुदरती मार से तो जो पूरा देश का किसान दुखी है, बहुत परेशान है, और इस समय किसानों की 3/4 फसल बर्बाद हो चुकी है। और बहुत ही किसान इस समय पूरे देश के अंदर जो छोटा किसान है, मध्यम किसान है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी है और वो आत्महत्या तक भी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा केंद्र की सरकार से ये कहना है कि राज्यों के साथ साथ केंद्र की सरकार को भी
जो किसानों की ये जो इस समय जो वो कुदरती मार से जो जूझ रहा है, इसमें केंद्र की सरकार को सामने आना चाहिए और राज्यों की भी मदद करनी चाहिए और केंद्र की सरकार को भी किसानों की मदद करनी चाहिए। उनकी जो फसल बर्बाद हो रही है उनको उचित मुआवजा देना चाहिए और इसके लिए हमारी पार्टी ये चाहेगी कि आप एक सर्वदलीय नेताओं की आप एक कमेटी बनाएं, उनसे विचार विमर्श करें और हो सके तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जहाँ जहाँ किसानों की फसल नष्ट हुई है, बर्बाद हुई है, उनकी भी आप मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाएं, उनसे विचार विमर्श करके किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। तो ऐसा हमारी केंद्र की सरकार से ये पुरजोर अपील है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, खास तौर से ये जो 2 समस्याएं मैंने रखी हैं, तो केंद्र की सरकार से ये कहना है कि हाउस उठने से पहले इन दोनों समस्याओं का कोई समाधान हो जाना चाहिए और केंद्र की सरकार को इस मामले में इन दोनों समस्याओं के मामले में अपना जवाब देना चाहिए, वरना पूरा देश का किसान जो है बहुत गुस्से में दुखी है और किसानों को इस समय जो उनकी फसल नष्ट हो गई है, सरकार ने उचित उनको मुआवजा नहीं दिया, उनकी मदद नहीं की। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश के अंदर महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं जो कृषि से जुड़ी हुई हैं, उनकी कीमतों पर नियंत्रण सरकार का खत्म हो जाएगा और खास तौर से जो बड़े बड़े व्यापारी हैं इसकी आड़ में इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। इसलिए केंद्र की सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए। धन्यवाद भगिन जी। श्री राम गोपाल यादव। श्रीमान, अभी 2-3 दिन पहले इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार 1-2 दिन के अंतराल में कुदरत का कहर किसानों पर टूट रहा है। जब चर्चा हुई थी उसके बाद जो बारिश हुई और जो ओलावृष्टि हुई, उसमें फसल लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य हों, पूरा उत्तर भारत, पश्चिम भारत, इस सब में किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई। मैंने उस दिन भी कहा था, माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, एक तो प्रक्रिया ऐसी ख़राब है कि जब ये नुकसान हो जाता है तो यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की टीम जाती है असेसमेंट करने और फिर मुआवजा देने का काम करता है गृह मंत्रालय। इसमें बहुत विलंब होता है और ये तत्काल किसानों को मदद की ज़रूरत होती है। तो किसान वैसे ही परेशान था क्योंकि किसान को उसकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है कुछ किसान, जबकि आपने कहा था कि हम लागत से अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि जो लागत का मूल्य होगा किसान की फसल का, उसके 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे। वैसा भी नहीं हुआ, तो पहले ही वो घाटे की सौदा थी, लेकिन अब पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई। हमारे तरफ तो बहुत बड़े पैमाने पर आलू होता है, गेहूं होता है, यही 2 मुख्य फसलें हैं। बुंदेलखंड में सरसों बहुत होती है, तिलहन होता है, अरहर होती है, ये सारी की सारी बर्बाद हो गई। कुछ ओले ने बर्बाद कर दी और कुछ पानी ने बर्बाद कर दी। हवा इतनी तेज आई कि पूरा गेहूं गिर गया। तो 50% से लेके 90% तक और कहीं कहीं पूरी तरह से खेती नष्ट हो गई है। अभी असेसमेंट करने में ये कहते हैं कि 50% से कम अगर नष्ट होगी तो हम मुआवजा नहीं दे सकते, फसल बीमा का लाभ किसान को नहीं मिल सकता है। तो ऐसा अब की है नहीं। अब की प्राइमा फेसी, माननीय मंत्री जी, प्राइमा फेसी आप देखें, आप स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे। किसी असेसमेंट की जरूरत नहीं है कि 50% से ज़्यादा तो फसल नष्ट हुई ही है। मैं स्वयं अपनी खेती खुद देखता हूँ तो इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि हिम्मत नहीं पड़ती जाने की खेतों की तरफ। पहले तो आत्महत्या करते थे किसान, लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि खेत पर जाकर किसान को इतना ज़बरदस्त शौक लगा है कि कई किसानों की हार्ट फेल होने से, अपनी फसल को देखने से जो धक्का लगा, हार्ट फेल होने से उनकी मौत हुई है। अकेले उत्तर प्रदेश में कल 7 लोगों की मौत हुई। सबसे ज़्यादा
मृत्यु चाहे वो हार्ट फेल होने से हुई हो, चाहे आत्महत्या करने से हुई हो, उत्तर प्रदेश में हुई है बड़े पैमाने पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ रिलीज कर दिया है। आपको चिट्ठी लिखी है कि और हमें मदद दी जाए केंद्र सरकार की तरफ से। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सारे हिंदुस्तान में जहां नुकसान हुआ है, केंद्र सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे। हमारे एग्रीकल्चर की जो स्थिति है, किस हमारी रीढ़ की हड्डी आपकी इकोनॉमी की जो है वो एग्रीकल्चर है, उसको अगर आप उस पर भी आप बहुत स्लो काम करेंगे, देर से मदद मिलेगी लोगों को, तो वो मदद भी कोई काम की नहीं होगी। इसलिए मेरी आपसे राय है, आपसे अनुरोध है मेरा आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, कि जितना शीघ्र हो उतनी राज्यों को मदद करे केंद्र सरकार। उनके सारे जो इस वक्त कर्ज वगैरह हैं, लोन वगैरह हैं, बैंकें, उन सबको निलंबित कर दे और किसी तरह का धन्यवाद न दे। राम गोपाल जी, धन्यवाद। श्री गुलाम नबी आजाद साहब। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, हमारे देश के किसान हमारी रीढ़ की हड्डी, और उन्हीं किसानों की वजह से आज विश्व का अगर सबसे बड़ा प्रोग्राम फूड सिक्योरिटी बिल यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने इस देश में लाया, और जिससे लाखों और करोड़ों तकरीबन 70% आबादी लोक संख्या को नुकसान फायदा पहुंचता है। 2 रुपये 3 रुपये में उनको गेहूं और चावल मिलते हैं, लेकिन ये तब संभव हो पाया जब हमारे देश के किसानों ने खून पसीना एक करके इतनी उपलब्धि प्राप्त कर दी और हमारे पास अनाज के इतने भंडार रखे, तो जब ही ये संभव हो पाया। लेकिन आज जम्मू कश्मीर से लेकर, हिमाचल से लेकर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब से लेकर, दिल्ली से लेकर, राजस्थान, यूपी, बिहार से लेकर, गुजरात से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, इन तमाम राज्यों में किसान परेशान। यहां थोड़ा हंसा मैं कहना चाहता हूं, ये असली हम हमेशा हर चीज किसान पर छोड़ते हैं। किसान से ज्यादा तो हमें परेशान होना चाहिए, देशवासियों को परेशान होना चाहिए, और सबसे ज्यादा तो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हों, केंद्रीय सरकार की हों, उनको सबसे ज्यादा परेशानी होनी चाहिए, और हम सबको जो विपक्ष में है उनको परेशान होना चाहिए। ये खाली किसानों की परेशानी नहीं। अगर हमारे देश में इस बर्फबारी की वजह से जो कश्मीर का इलाका हो या हिमाचल का हो, या हॉर्टिकल्चर खत्म हो गया, फ्लोरिकल्चर खत्म हो गया, तो उससे तो पूरे देश पर असर प्रभाव पड़ेगा। आज पंजाब, हरियाणा या यूपी या बिहार या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में सरसों, गेहूं, आलू, चना, धनिया, जीरा, इसबगोल, और ये इन तमाम चीजों पर अगर असर पड़ा है, चाहे ज्यादा बेवकत बर्फ की वजह से जहां जहां बर्फ पड़ती है, या ओलों की वजह से। महाराष्ट्र के लोग तो बता रहे थे कि पहली दफा हमने बर्फ देखी, तो मैंने बर्फ नहीं, मैंने कहा वो ओले थे, वो इतनी जमा हो गई थी कि बर्फ दिखती थी, हेल स्टॉर्म, बारिश की वजह से। तो फसल सब डूब गई है। ये न सिर्फ किसानों के लिए चिंता है, ये पूरे राष्ट्र के लिए चिंता है, पूरे देश के लिए चिंता है, चाहे सरकार में लोग हों या विपक्ष में लोग हों, क्योंकि उपभोक्ता पर इसका सबसे ज्यादा, जैसे मायावती जी ने बताया कि कीमतें बढ़ जाएंगी, और कीमतें बढ़ जाएंगी तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो प्रभावित लोग हो जाएंगे वो बेचारे गरीब लोग होंगे। और इस प्रोग्राम को जो फूड सिक्योरिटी बिल है, जो बिल के द्वारा आज सहायता मिल रही है करोड़ों लोगों को, उसको भी चलाना असंभव होगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि 2-3 चीजें जरूरी करनी है। एक तो असेसमेंट जो करना है मुआवजे के लिए, वो बड़ी फेयर होनी चाहिए। हमेशा शिकायत आती है मुआवजे के बारे में, कुछ लोग छूट जाते हैं और कुछ लोग को मुआवजा मिलता।
और फिर उसके बाद फेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए। फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो मुआवजे की वो करप्शन फ्री होनी चाहिए। फिर अगर मुआवजा कहीं मिल गया बेचारों को गलती से, फिर उसमें करप्शन होती है। और फिर इसकी तरफ इसके साथ ही केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से फाइनेंशियल पैकेज इन किसानों के लिए अनाउंस होना चाहिए। यही मेरा थैंक यू वेरी मच श्री सीताराम येचुरी। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। सर, अभी आपने सुना है सभी विपक्ष के नेताओं की तरफ से कि कितनी गंभीर परिस्थिति है देश के अंदर खेती की व्यवस्था में। अब इस डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बात तो ये है सर, जब दिल्ली के चुनाव जब हो रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रचार करते हुए कहे कि नसीब अच्छा है उनका, वो आप प्रधानमंत्री बनते ही दुनिया के अंदर तेल के दाम गिर गया। तो अब नसीब जिनका अच्छा नहीं है उनको क्यों चुनने वाले? अब क्या नसीब ये बताइए, प्रकृति का ये जो जिस तरीके से वो उभर कर आया पूरे उत्तरी भारत में, जिससे जो नुकसान हुआ हमारे देश के अंदर खेती का, उसके बारे में आपने विवरण सुना, ओले जो पड़े हैं। अब नसीब की बात ही कहते, पुराना एक कहावत है सर हिंदी में जो कहता है सर मुंडराते ही ओले पड़े हैं। अब ये हालत है हमारे देश के किसानों का आज के दिन, तो राहत उनको मिलनी चाहिए। पैडी का दाम घटा है दुनिया के अंदर, देश के अंदर। शुगर केन के मिल ओनर कह रहे हैं, शुगर केन के मिल ओनर कह रहे हैं कि 31 मार्च तक वो जो गन्ना प्रोड्यूस करने वाला किसान है उनको जो देना है पैसा 17,000 करोड़ वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शुगर के अंदर गिरावट आई है। आलू उगाने वाला किसान पिछले 20 दिन में पश्चिम बंगाल में 10 आलू उगाने वाले किसान आत्महत्याएं किए। आलू का दाम गिर रहा है, उसको जलाया जा रहा है खेतों में। आज प्याज का, हाँ आज चाय बोलो, आज या प्याज का, हम पिछले हफ्ते नासिक में थे, शरद पवार जी बताएंगे आपको, आपने पूरे एशिया का सबसे बड़ा प्याज का मार्केट, वहां पे 11 रुपए किसान को मिल रहा था सबसे बेहतरीन प्याज के लिए। वो यहां तक पहुंचते 25-30 रुपए हो जाते, लेकिन उस किसानों को आज वो भी पैसा नहीं मिल पा रहा क्योंकि पैसे है ही नहीं। ये बताएंगे आपको डिटेल में, 2.5 रुपए मिल रहे हैं, 2.5 रुपए, 11 रुपए की जगह। तो अब ऐसी परिस्थिति में एक किसानों की रक्षा के लिए और हमारे देश के अंदर खेती के लिए सरकार को कुछ कदम फौरी तौर पर उठाने की जरूरत है। कर्जा माफ करवाइए। और ये पिछले 3 सालों में हमने देखा, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा वो इस पे ध्यान करें। पिछले 3 साल में सर प्रोक्योरमेंट प्राइसेस जो बढ़े हैं, हमारी शिकायत थी शरद पवार साहब के खिलाफ, हम उनको भी ये बात बता रहे थे, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस जो बढ़े हैं उससे भी ज्यादा अपने एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस का ब्यूरो जो है वो एस्टिमेट किया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा। अब ये सरकार में आने से पहले अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा उसका 50% जोड़ के प्रोक्योरमेंट प्राइसेस होंगे। क्या हुआ उस वादे का? आज वो वायदा किधर गया? अब ये सवाल हैं सर जो बड़े गंभीर है। ये अलग बात है, प्रचार तो किया जाता है, खेती का जो शेयर है जीडीपी में वो घट रहा है, अब जो है शायद 24% के करीब आ गए, लेकिन यही 13 तक आ गए, अब लेटेस्ट 13% तक आ गई। लेकिन याद रखिए यही 13% है, ये 120 करोड़ लोगों की आबादी को खाना खिलाता है, उसको जिंदा रखता है यही किसान और हमारी खेती की व्यवस्था। अगर उसका ख्याल नहीं करेगी सरकार तो हम समझते उससे बड़ा दुशासन का कोई और प्रक्रिया नहीं होगी। तो हम चाहेंगे, अब बात खत्म कर रहे सर, यही हम चाहेंगे सभी की ओर से। हम समझते हैं कि सरकार भी इसके बारे में चिंतित है, तो फौरन हम चाहते हैं कुछ इमरजेंसी नेचर से जिसको ध्यान में लिया जाए और फौरन राहत के लिए कुछ अनाउंसमेंट किया जाए। किसानों को बचाइए, खेती को फिर से वापस उगाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए उसके लिए निवेश करना है, बड़े पैमाने पर निवेश करिए। लेकिन आज सर क्या आपके उनके ऋण माफ करवाइए और जो भी राहत उनको दिलवाना है वो दिलवाइए। इसके अलावा हम अपनी खेती की व्यवस्था को बचा नहीं पाएंगे। तो अगर वो नहीं बचता तो इंडिया नहीं बचेगा। ये इसको ध्यान रख के वो बताए। श्री भूपेंद्र यादव महोदय, अभी जो रबी की फसल पे जो
बेमौसम बारिश के कारण जो संकट आया है, पूरे सदन ने उस पर एक स्वर में सरकार के सामने ध्यान आकृष्ट किया है। जब पहले 10 दिन पहले जब बारिश आई थी और सदन में चर्चा चली थी, तब ऐसे लगता था कि जो अग्रिम बुआई हुई है केवल उन फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन अभी जो शुक्र, शनिवार और रविवार को जो बारिश हुई है उसमें जो दोनों समय पे जो बुआई हुई है, आगे अग्रिम और बाद में, उन दोनों पे ही बड़ा गंभीर नुकसान हुआ है। और किसानों की समस्या में जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक सर्वदूर जो नुकसान हुआ है उसका तुरंत आकलन करके और उसके लिए तुरंत राहत पहुंचाना बहुत आवश्यक है। अब जिस कृषि व्यवस्था में हम आ गए हैं उसमें जो कमर्शियल जो खेती जो चीज़ें हमारी क्रॉप्स जो देती हैं, लहसुन है, ईसबगोल है, जीरा है, सरसों है, सामान्यतः उसकी बुआई के लिए किसान कोऑपरेटिव से छोटे लोन लेता है और जो कोऑपरेटिव के जो लोन किसान तुरंत लेता है उसके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है। दूसरा, एक जो बिजली का जो बिल भी इस समय होता है, क्योंकि उसका तुरंत अक्टूबर नवंबर में जब हम अपनी बुआई शुरू करते हैं उसके साथ किसान के खर्चे और सपने दोनों ही बुआई के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि हम जब इसकी फसल आएगी अपनी फसल, तो फसल को पाने के बाद अपने खर्चे भी पूरे करेंगे और अपने सपनों को भी पूरा करेंगे। और इसलिए इस बार जो प्रकृति की जो संकट आया है, इतना जबरदस्त संकट शायद राजस्थान में मैंने विशेष रूप से अनुभव किया और जमीन को जानने के बाद देखा है कि 26 जिलों के लगभग 4,500 गाँवों में इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि प्रकृति की विपदा कैसी है कि किसान खेत में हार्ट अटैक से उन्होंने अपना जीवन खोया है। तो जितना किसान पे इस समय आर्थिक संकट है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा किसान के ऊपर भावनात्मक संकट भी है, क्योंकि आने वाले समय में जो फसल का जो हमारा जो भी पैसा आता है उससे शादी ब्याह, रिश्ते, सामाजिक जीवन, संस्कार, ये सारा विषय खेती और खेती से आने वाला जो हमारा जो किसान को जो मिलता है उसके ऊपर संकट खड़ा होता है। और राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को आकलन भी पहुंचाया है। हम लोगों ने SDRF और NDRF के नॉर्म्स भी बनाए हैं। एक विशेष परिस्थिति में क्या उनमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट है जिसको हम अगर ज़मीन में जाएंगे तो महसूस करेंगे। और हम माननीय वित्त मंत्री जी से मिले थे, उन्होंने तुरंत इसके सर्वे के लिए भी इस पर विषय किया था। सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस विषय को आगे बढ़ाया था, राज्य सरकारों ने इस विषय को लिया था। ये किसानों की आपदा का विषय देश की आपदा का विषय है और मुझे लगता है कि इस समय हम सब लोगों को केवल किसानों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उनके बीच में जाकर के एक भावनात्मक संवाद स्थापित करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि तुरंत उसके बाद एक और जो बड़ा संकट आने वाला है कि हम किसान के संकट के साथ साथ किसान और पशु को अलग करके नहीं देख सकते। इसके कारण चारे का संकट भी होगा। और पश्चिमी राजस्थान में देश भर में जब 1300 मिलीमीटर बारिश थी, पश्चिमी राजस्थान में पिछले 2-3 सालों में लगभग 330 मिलीमीटर बारिश थी। और अभी ये जो अनावश्यक बारिश हुई है, इसके कारण भी जो पशुओं का जो चारा है जो मुख्य है, उसके कारण भी संकट उत्पन्न हुआ है। ये एक बड़ा संकट है और मुझे लगता है कि सरकार संवेदनशीलता के साथ इस विषय पे कारागार कदम उठा रही है और उसमें और तीव्रता रहे, इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। श्री शरद पवार। किसी त्यागी जी ने जो खेती की समस्या यहाँ रखी और अन्य नेताओं ने इस बारे में अपनी राय सदन के सामने रखी, मुझे लगता है कि पिछले कई सालों में इतनी गंभीर स्थिति खेती के क्षेत्र की हुई नहीं थी। एक तो देश के कुछ हिस्से में सूखा है, देश से बहुत से हिस्से में अनसीजनल रेन है, कई जगह पर ओले से नुकसान हुआ है। इसमें 3 तरह का नुकसान वहाँ हुआ है। एक तो पहला, जहाँ सूखा है वहाँ की स्थिति अलग है, वहाँ कोई पैदाइश ही हुई नहीं। और जहाँ अनसीजनल रेन या ओले पड़े हैं वहाँ क्रॉप लॉस सबसे ज़्यादा हुआ। इसमें गेहूँ है, इसमें चावल है और इसमें बागवानी फसल है और ख़ास तौर पर अंगूर, ऑरेंजेस और मैंगोज, इनका नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो साल में एक बार वो फसल आता है और इसके लिए किसानों को इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ती है। समझो 1 एकड़
अंगूर का फसल लेना हो तो कम से कम 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और वो फसल ख़त्म हो गया तो किसान खुद बहुत समस्या को तो उनका सामना करने की नौबत उनके सामने आती है। दूसरी बात ये हुई है कि जहाँ पैदावारी हुई वहाँ कीमतें गिर गए। अभी देखिए कि मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु के कुछ एरिया में, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में कपास एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है। दुनिया में 2 नंबर की कपास का एक्सपोर्ट करने वाला देश हिंदुस्तान था पिछले साल तक। इस साल परिस्थिति बदली है। अभी कपास के लिए पिछले साल तक 5,800 से 6,000 रुपये क्विंटल कीमत मिलती थी, आज 3,700 तो 3,800 कीमत मिल रही है। उसका जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है वो भी आज उनको मिल नहीं रहा। गन्ना का फसल आज दुनिया में चीनी का उत्पादन करने वाला ब्राज़ील के बाद हिंदुस्तान हाई देश है, और दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन शुगर का एक अलग स्थान है। हम चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, इस देश की जनता की चीनी की समस्या हल करते हैं। आज क्या हुआ चीनी का, और किसानों को गन्ने की कीमत क्या मिल रही है? पिछले साल 250 रुपये क्विंटल कीमत मिलती थी गन्ने की, 260 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने दी थी, और आज वही कीमत 160, 180 के आसपास है। 2 गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश का और कर्नाटक की, उन्होंने अपने ट्रेजरी से किसानों को कुछ पैसा देने के लिए कोई सुविधा रखी, मगर बाकी स्टेट इस बारे में कुछ कर नहीं सकते। तीसरी बात जो ये इसमें है कि इनसफिशिएंट प्रोक्यूरमेंट, जहाँ गेहूँ तैयार हुआ, जहाँ चावल तैयार हुआ, एक आज तक ये नीति थी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जितना मार्केट में अवेलेबल होता था, किसान बेचना चाहता था, वो खरीदती थी। आज मध्य प्रदेश का आप मिसाल देखिए, आज देश में एक ज़माने में पंजाब हरियाणा सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य था। आज इसमें बदलाव आ गया। मध्य प्रदेश सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए कि आज इस देश में सबसे ज़्यादा गेहूं का सप्लाई करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के किसानों ने ली, क्योंकि वहाँ की सरकार ने भी उनको मदद की और खरीदने के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था की। आज शिकायतें ये रही है कि वहाँ की सरकार ने 100 रुपये का बोनस देने के बावजूद ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने का काम किसानों ने करने के बाद आज एफसीआई खरीदने के लिए वहाँ नहीं है, और इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है, और इन बारे में कुछ करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इसमें 3 बातें करने की आवश्यकता है। स्टेट गवर्नमेंट की लिमिटेशन है, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ से मदद करने की आवश्यकता है। दूसरी, ऑल टाइप ऑफ रिकवरी जो है वो सस्पेंड करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर क्रॉप लोन वेव करने की आवश्यकता है। जो लॉन्ग टर्म लोन लिया है, चाहे कुआं करने के लिए, कहीं मशीन खरीदने के लिए, कहीं ट्रैक्टर खरीदने के लिए, इसका टोटल रीशेड्यूलमेंट करना चाहिए, इसको इंस्टॉलमेंट देना चाहिए, इसका इंटरेस्ट वो माफ़ करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। और तीसरी बात जो यहाँ कही गई कि कुछ क्षेत्र में जहाँ सूखा है वहाँ चारा इसकी कमियाँ है, मुझे तो चिंता है कि एक तरह से हम काऊ स्वास्थ्य पर बैन भी लाते हैं, दूसरी तरफ हम चारा की समस्या भी रेज करते हैं। इस बारे में प्रैग्मेटिक डिसीजन लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद। श्री सुगंधर रॉय, सुगंधर रॉय। सर, on behalf of All India Trinamool Congress, I share the deep concern of the honorable members that due to untimely incessant rain and hailstorm in different parts of the country, including the districts of South Dinajpur, Malda, Murshidabad, Nadia, North 24 Parganas, South 24 Parganas, Howrah, Hooghly, Purbo Medinipur, in the state of West Bengal, vast agricultural lands are affected, and huge quantity of crops like wheat, pulses, potato, paddy, fruits, etc. have been destroyed. This has caused unbearable sufferings and irreparable losses to the farmers.
As a resultant effect, many farmers could not bear the shock of the vagaries of the nature and died out of heart attack. Sir, the situation is undoubtedly alarming. Hence, some financial package must be announced by the central government towards relief and rehabilitation of the affected farmers without further loss of time. Sir, at the same time, I would like to invite the attention of the central government to the plight of the potato farmers in West Bengal who have been subjected to distress sale as they are not getting remunerative prices of potato. Although the government of West Bengal has taken special measures to arrest the situation, I would request the through you, the Honorable Finance Minister, to take stock of the situation and if possible some financial assistance should be given to the state government so that some more steps can be taken in this regard. Thank you, sir. Thank you very much, Sri Navneeta Krishnan. Be brief as far as possible. Be brief. Yes. On behalf of ADMK headed by Honorable Amma, I share the concerns of all our honorable members. Regarding Tamil Nadu farmers, I have got a request to the Honorable Finance Minister. The Kaveri Tribunal has mandated to constitute Kaveri Management Board. It is a degree passed by the Supreme Court. It is well known to our Honorable Finance Minister better than me. That degree is not obeyed by the central government. Honorable Amma has instructed the Tamil Nadu government to move the Supreme Court of India. The state of government has moved the Supreme Court of India. Then UPA government, Additional Solicitor General, has made representation stating that it is under consideration. You speak on the crisis of crisis because to avoid any crisis in Tamil Nadu, I speak. To avoid, I share the concern of all the members with regard to the North Indian farmers. With regard to Tamil Nadu farmers. Indian farmers, all are Indian. Indian farmers. Indian farmers, part of Indian farmers. I request the central government to constitute management board as early as possible. And also, with regard to the construction of dams at Magadadu across the Kaveri river by the Karnataka government, the central government must prevent it. Okay. And the Honorable Amma has taken effective steps to protect the farmers of Tamil Nadu. Otherwise, all steps will be frustrated. Thank you, sir. Okay, Sri Vaishnava Parida. I share the deep concern of our friends from the states which are deeply affected by the storms and rains, which has created a colossal loss of crops. Be brief, very brief. Commercial the shortage crops. of time. Paridaji, be very brief. Sorry, it has shaken the backbone of millions of farmers of those part of our country. The loss of is calculated is more than 50,000 crores, sir. In our country, the farmers are failing, neglected and ill-treated. And now this will become a great stress on their part, how they will bear the colossal loss of this untimely rain, sir. So this loss of crops will not only affect the lives of the millions of farmers, but also the food supply system of our country. Crop insurance of our in our country is insufficient and inadequate. So the majority of the farmers who lost their crops, they will not be benefited by these insurances, sir. So in order to save this community, farming community from this loss and distress, the central government should come forward with a package, with a plan to help them immediately with the collaboration of the state governments. Sir, with this, I request the central government to form a committee consisting of the members of all the political parties and experts and come to the rescue of the farmers. Thank Srimati Kanimadi, be very brief. Yes, sir. Thank you, sir. The farmers in Tamil Nadu, like the farmers in other parts of India, have also been greatly affected by climate change.
we've had unseasonal rains, floods and droughts. So when it comes to harvest season, we've had floods and so much of food grain has gone wasted. Even the mango production last year, the farmers have been greatly affected in Tamil Nadu. So it really affects the farmers in Tamil Nadu, also the climate change, and the yield from the farms have been consistently declining also. That is of great concern. And the cost of production in farms have gone up very high, and recently also one of our colleagues had raised the problems of sugarcane producers, farmers in Tamil Nadu. The minimum support price has not been negotiated and the minimum support price has not gone up. So because of the debts which are created for farmers, they are greatly affected, and many of the farmers are selling off, even in Tanjavur areas. So 1 minute, they are selling their land to real estate owners to build things, and farming is getting affected in a great way. And unlike our ADMK colleagues, I like to associate with them about their concerns about the Kaveri Delta farmers and what is happening in Karnataka and the dams. Sanjay Raut. सर पूरे देश का पूरे देश का किसान परेशानी में है, और जब किसान परेशानी में रहेगा तो पूरा देश परेशानी में रहेगा। वित्त मंत्री यहाँ बैठे हैं और देश का किसान बड़ी आशा और अपेक्षा से आपकी ओर देख रहा है। ये बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, पूरे देश की है। लेकिन महाराष्ट्र का किसान भी हमेशा एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा योगदान देते आया है। लेकिन जैसे हमने सुना कि इस बार हमारे खेतों में हमने पहली बार बर्फ को देखा है, जो हम कश्मीर में जाते थे देखने के लिए। हमारे कोकण में मैंगो का फसल खत्म हो गया है, विदर्भ में कपास चला गया है, नासिक में अंगूर का नुकसान हुआ है, और ऑरेंज है, मौसम्बी है, कोई फसल नहीं बची है महाराष्ट्र में। तो हमारी ये मांग है, जैसे पवार साहब ने कहा, जो भी रिकवरी है बैंकों की है वो सबसे पहले आप सस्पेंड कर दीजिए। बिजली के बिल जो किसान आज भर नहीं पा रहे हैं, आप उसको सस्पेंड कर दीजिए। और गांव का जो किसान है, उसका बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, आज उसके ऊपर बड़ा संकट है, वो अपनी फीस कैसे भरे कॉलेज की बच्चों का। तो उस बारे में अगर ये जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी अगर फीस भी आप माफ कर देंगे इस बार, तो एक बहुत बड़ा फायदा किसानों के लिए होगा। तो मेरी ये सरकार के सामने ये मांग रहेगी कि आप इस बारे में गंभीरता से विचार करें। और हमारा जो किसान है, स्टेट को जरूर कुछ लिमिटेशन है, राज्य सरकारें मदद कर रही है, लेकिन केंद्र की सरकार किसानों की माई बाप है। तो आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है हमारे लिए, किसानों के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए और किसानों को जिंदा रखने के लिए सिंह बुंदा। सर सिर्फ मैं पॉइंट ही बोला ना, रिपीट नहीं कराया कोई लफ्ज़। एक तो जो असेसमेंट का सिस्टम है वो देश में अभी तक ठीक नहीं। एरिया ले लेते हैं, ब्लॉक ले लेते हैं, अगर 100 एकड़ फसल का भी नुकसान हो जाए तो क्यों नहीं इसको नोट्स में लिया जाता, क्यों नहीं असेसमेंट की जाती। सेकंड पॉइंट असेसमेंट में मेरा है कि अगर 50% या 100% है फिर रिलीफ के लिए सोचा जाता है, अगर 20% हो जाए फिर क्यों रिलीफ। किसी का कितना भी नुकसान है, नुकसान है। इसीलिए एक तो ये मेथड बरतना चेंज होना चाहिए। हम पंजाब में किया चेंज। सेकंड जो है कि जो रिलीफ है वो सेंटर से सिर्फ इरीगेटेड एरिया पे 1500 रुपया पर एकड़ है, और जो बिरानी है 700 रुपया पर एकड़ है, बहुत मीगर है। इसलिए अब इतनी महंगाई है, 20 रुपया पर एकड़ जो है, 20,000 रुपया वो सेंटर से स्टेट को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। इसलिए उनके जो में हम छोड़ देते हैं, स्टेट के पास कहाँ रिसोर्स है, वो तो कमीशन ही नहीं उसका जान तो छोड़ते, एक कमीशन, दूसरा कमीशन, तीसरा कमीशन। चौथा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोन्स है शॉर्ट टर्म, उसको लॉन्ग टर्म में करना चाहिए, लेकिन साथ के साथ जो ब्याज है उसकी माफी होनी चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट आप ओन करे। नेक्स्ट उससे जो नेक्स्ट क्रॉप है उसके लिए जो न्यू लोन है उसको प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो किसान नेक्स्ट क्रॉप है जो अपनी बीज सके। इसलिए जो मेरे 4-5 पॉइंट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार
जतन करेगी कि सेंटर जो है स्टेट के जो हेल्प पे आएगा और किसान की हेल्प करेगा। धन्यवाद। Now I have a dozen more names, but I am sorry I am not able to accommodate them for paucity of time. Kindly bear with me, Honorable Minister. माननीय उपसभापति जी, Not possible. No time. No, sit down, sit down. No time, I am not able to accommodate. Minister has to reply. Minister needs at least 10 minutes. You gave the name very late also. I am not able to sit down. No. Minister only. Honorable Minister, nothing else will go on record. Your leader has spoken. Sit down. No, let the minister reply. Let the minister reply. Rajini ji, I am sorry. I wanted to accommodate. I am unable to accommodate. But I am unable, please. Yeah, there are, please, Honorable Minister. माननीय उपसभापति जी, Now please listen. सदन में जो विषय श्री केसी त्यागी जी ने उठाया है, एक ही स्वर में सभी राजनीतिक दलों ने उस विषय को आगे बढ़ाया है। सचमुच में ये जो अनसीजनल बरसात हुई और ओले पड़े, एक प्राकृतिक आपदा किसानों के ऊपर हुई है और एक भारी क्षति देश के विभिन्न राज्यों में किसानों के साथ हुई है। केंद्र सरकार इसमें पूरी हमदर्दी रखती है और जो भी प्रशासनिक और सहायता के कदम उठाए जा सकते हैं, केंद्रीय सरकार इसमें उठाने वाली है। कुछ राज्यों ने पत्र भी भेजे हैं, कुछ सांसदों ने भी भेजे हैं अपने क्षेत्रों के संबंध में। हर राज्य का पूरा आकलन जो राज्यों से समाचार आ रहे हैं उससे अभी नहीं हो पाया है। इसलिए कृषि विभाग, माननीय मंत्री जी दूसरे सदन में प्रश्नकाल में हैं, कृषि विभाग ने हर राज्य के लिए अलग अलग टीम गठित कर दी है और आज से कृषि विभाग के जो तीनों मंत्री हैं वो स्वयं भी इन राज्यों के दौरे के ऊपर जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, जो कई सुझाव माननीय शरद पवार जी ने भी दिए, किस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं, अन्य सदस्यों ने भी दिए। इसमें बिना टेक्निकलिटीज में गए हुए एक हमदर्दी की भावना के साथ कि कितनी जल्दी से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की सहायता हो पाए और उनको रिलीफ पहुंच पाए, इस नजरिए से उन राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाकर केंद्रीय सरकार और कृषि विभाग इसमें तुरंत कदम उठा रहा है। जो आप सब ने भावना प्रकट की है, मैं उस विभाग के मंत्री को आज ही कन्वे कर दूंगा। दिग्विजय जी, मध्य प्रदेश में 3 साल से लगातार ओले गिर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बात कही अपनी जगह सही है, उसकी प्रक्रिया का पालन वो करेंगे ही, लेकिन पिछले साल का कृषि का जो बीमा योजना का पैसा है वो तक अभी नहीं मिल पाया है मध्य प्रदेश में। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 का भी जो कृषि बीमा का पैसा था वो भी नहीं मिल पाया है। आप मुआवजे की बात तो छोड़ दीजिए। मेरी नोटिस है। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं जानता हूं उसको गंभीरता से सरकार ले रही होगी, लेकिन श्रीमान अभी खरीफ की फसल में सूखा पड़ा, पूरे उत्तर प्रदेश में धान की फसल समाप्त हो गई। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम टीम भेजेंगे और टीम के बाद उनको कुछ न कुछ मुआवजा मिलेगा। अभी खरीफ का तो मिला नहीं और रबी में आप कब टीम भेजेंगे? तो किसान तो बर्बाद हुआ जा रहा है। जो किसान अन्नदाता है, अगर उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं तो हमारे चेहरे पे मुस्कान नहीं आ सकती। श्रीमान, ये कोई प्रक्रिया नहीं। मैं चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री स्पेसिफिक घोषणा करें कि कितना किस राज्य को देंगे। जैसे यूपी ने 200 करोड़ दिए। मैं आपके माध्यम से अर्थ मंत्री जी को ये पूछना चाहती हूँ सर कि गए 3 साल से महाराष्ट्र में कभी अकाल पड़ रहा है, कभी ओले गिर रहे हैं, कभी अतिवृष्टि और हाल ही में जो बेमौसमी बारिश हो गई उससे राही भगवान किसान हो गया। सर, आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो महाराष्ट्र
पूरे विश्व को, केवल देश को नहीं, पूरे विश्व को आम देता है, जिसको अल्फांसो बोलते हैं, अंगूर देता है, अनार देता है। हमारे यहाँ कपास का, जैसे अभी पवार साहब ने बोला, सिर्फ 37 रुपए हमें रेट मिला। सोयाबीन का उत्पन्न बहुत कम हुआ और किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही है। मैं अर्थमंत्री जी को ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे स्टेट में, सर हमारे स्टेट में जो आनेवारी की या पैसे वाली की जो ब्रिटिश काल से लगी जो पद्धति, सवाल पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी हुई है, ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश का प्रभावित हुआ है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ माननीय वित्त मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं, इसे मेरा प्रश्न भी मान लें कि उत्तर प्रदेश में जो ओलावृष्टि से, ज्यादा बारिश से तबाही और बर्बादी हुई है, क्या आप उत्तर प्रदेश को इस आपदा से निपटने के लिए एक स्पेशल पैकेज उत्तर प्रदेश को देंगे जिससे वहां के किसानों की मदद हो सके? मतलब एक एक प्रांत की जानकारी जो लेना चाहेगा, एक एक प्रांत की जानकारी वो कृषि विभाग दे सकता है, क्योंकि प्रमोद तिवारी जी ने, नरेश जी ने उठाया है। तो मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश को सूखे की वजह से पिछले साल का जो आप कह रहे थे 2014-15 का 777 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। यस राजा, वो पिछले हफ्ते हुआ, पिछले हफ्ते हुआ, उसका भी इसी हिसाब से दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। क्या हो गया भाई त्यागी जी, ऑलरेडी मेड योर पॉइंट। सर, मेरा निवेदन नेता सदन से बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के 2 महत्वपूर्ण पद, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च और CAPP, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कमेटी, दोनों पद 6 महीने से खाली हुए। रेल के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कल आपने टाटा को बैठा दिया। जो कृषि संबंधी समितियां हैं वो खाली पड़ी हुई है। पवार साहब के टाइम पर डॉक्टर के कारण समस्या खड़ी हो गई और उसके चलते हुए भारत का अधिकांश हिस्सा ये प्रभावित हो गया है, फसलें बर्बाद हो रही। उत्तर प्रदेश से जहां मैं आता हूं, बड़ी भारी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहा है। पिछले दिनों में नरेश अग्रवाल जी ने, लेकिन ये मालूम है कि जो धान है, उत्तर प्रदेश सरकार तो बोरे भी नहीं उपलब्ध करा पाई जो वहां किसानों से धान की खरीद हो जाती। और इस समय काफी बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि आलू जो है वो सड़कों पर पड़ा हुआ, खेतों में पड़ा हुआ, भंडारण की भी समस्या खड़ी हो गई है। सर, तो में रखने की जगह नहीं है, सारा तिलहन बर्बाद हो गया है, की फसल बर्बाद हो गई है। राजा बोलो, only 1 minute. Only 1 minute for you. 1 minute बोलो. Minister has just now informed, he will convey to the agriculture minister. It is very good, but only Raja now. Sir, finance minister has just no, Mr. I have not allowed you. He will convey our I have not allowed you to the agriculture minister. But what I understand, government is a collective. Now, as a collective, government will have to act to address the immediate problems of the farming community. Sri Hussain Dalwai. And long-term issues of the farming community. Raja, take your seat. Sir, take your seat. Sir, Hussain Dalwai got given notice. Sir, Mr. Misri, Hussain Dalwai got given notice. That's why I allowed him. Sit down. Sir, महाराष्ट्र में 122 लाख हेक्टर जमीन का डैमेज हो गया है। 90 लाख किसानों का नुकसान हो गया है। और सरकार ने बार बार कहा कि हम देंगे यहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक भी पैसा दिया नहीं। उन्होंने मांग की थी 4,800 करोड़, एक भी पैसा दिया नहीं। 1,000 करोड़ हॉर्टिकल्चर के लिए मांग की थी, एक भी पैसा दिया नहीं। और 9 तारीख को सेक्रेटरी की मीटिंग हुई, लेकिन उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। जो मंत्री सर, सारा सदन चिंता कर रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जैसे राजस्थान में सब एमएलएस ने 1 महीने की सैलरी दी है, इसलिए इसका प्रस्ताव पास किया जाए, सारे एमपी भी 1 महीने की अपनी सैलरी इन किसानों के ऊपर जो विपदा आई है उसके लिए देंगे। इसका प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए। तब माना जाएगा कि सब एमपीज बहुत चिंता कर रहे हैं यहाँ किसानों की, और जो बेमौसम वर्षा के कारण नुकसान हुआ है उसकी चिंता कर रहे हैं।
Yes, yes. Yeah, you can say. Agrarian crisis is severe. Monsoon is failing. This is a matter of wind flow between June and September. At the equator, the air flow. मैं चेयरमैन साहब, मैं एक Time over. मैं एक Time over. It is time for questions. Question hour.